करने के लिए like how the what policy जो हम apply कर रहे हैं, what protocol we are using. Okay. So and the storage doesn't mean that it only includes the data, but includes the complete information like in regards to the VM configuration and to the related to the data also. Great. So let me help you to understand about the storage services with our VMware environment. Means how we can manage the storage services using the VMware virtualization. As per the name suggests, first of all, we should know about the points that we need to cover in case of storage. Every storage means if we talk about in case of VMware environment, we have a two different way to set up our storage services. For example, this is our ESXi host, and the storage contain two different types of service. One is local storage, okay, Okay. and another is share storage. Yes. As a VM admin, it's our responsibility. We should know about how we can utilize the local storage and how we can configure the share storage. So local storage, as per the name suggests, for example, we establish one ESXi host. Let me access the ESXi host first. Okay, the meaning of local storage, whenever we click on the storage point, we are able to find one storage available. So local storage in the sense you are just attaching a hard drive directly to the ESXi. Whenever we attach any hard drive directly with the our ESXi host, consider as a local storage. अगर हम यहाँ पे शेयर स्टोरेज की बात करें तो फॉर द शेयर स्टोरेज सर्विस व्हाट यू नीड टू डू, you need to connect at least one share storage device. It may be SAN storage, or you can say that consider as a NAS storage. So both are the types of storage service that help us to manage our storage services with ESXi. So let me access MSTSC. I'm going to set up one machine with Server 2016. I have already installed. So we will use our Server 2016 as a Share storage. share storage. Yes. I have already set up one Server 2016-19. It's not mandatory to use the 16. Server 2012, 2016, 2019. Any kind of server operating system you must need to install. You must need to uh, install, and with the help of server machine we will use the feature of share storage service. Before that, we should know about the content that we need to cover in case of शेयर स्टोरेज सर्विस. एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ESXi होस्ट में या VMware शेयर स्टोरेज में कितने तरीके के कंपोनेंट्स हमें आने चाहिए. VMware share storage management. Okay, so in case of VMware share storage management, n number of storage services are available, n number of points that we need to know, like as
I hope you are aware about the SAN and NAS storage. Can you please explain me what you think about the SAN and NAS storage? So SAN is the like which storage area network basically. Mm-hmm. So basically both use different types of these protocols. So basically this if I talk about NAS, so NAS it uses the files with via Ethernet. If and SAN we can use it to connect we can use it for like different networks. Use it. Fine. So these all are the points that we need to cover in case of share storage. We'll start from the very basic, like as about the concept of storage. And in the storage part, we have a SAN storage, NAS storage. About the logical unit number, consider as LUN. Disk, data store, storage protocols, RDM disk. How to add a storage with our ESXi host and configure storage services under the ESXi host. This is our agenda. As admin, we should know about the gap between SAN and NAS. We should know about how we can set up a SAN storage and NAS storage. We are responsible to understand about the management of logical unit number, disk storage, protocols of storage that help us to provide the communication between two different means make a communication between share storage to ESXi host. Basically, this is our agenda. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सैन एंड नैस. बहुत ही बेसिक सा गैप है इनके बीच में. अगर हम सैन और स्टोरेज और नैस स्टोरेज को कंपेयर करें तो बहुत ही बेसिक सा गैप है इन दोनों के बीच में एंड वी शुड नो अबाउट इट. सैन स्टोरेज एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे अगर हम सैन की बात करें और नैस की बात करें, नैस एंड सैन स्टोरेज, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. पहले इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं कि किस तरीके से टास्क परफॉर्म होता है एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द गैप बिटवीन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस. नेट से स्टार्ट करते हैं विच इज कंसिडर एज ए नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज. इज दैट करेक्ट? Yes. The meaning of network attached storage is related to the meaning of network attached storage is related to the ऐसा स्टोरेज जो आप सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा स्टोरेज जो आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड वाइड. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे स्टोरेज के, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. For example, this is our organization that we established in location of Delhi, and another office that we established in location of maybe Mumbai, Pune, and any other countries like Dubai or any location. This is our base location, or you can say that regional office, and these all are the branches that we establish in different geographical location. Okay. Right. So Delhi is our base location, regional office, and I wanted to establish one storage. Right, like we established one storage with the capacity of maybe 100 TB. We establish our storage with capacity of 100 TB. And our responsibility to share this particular 100 TB of space to all the branches. जितनी भी branches हमने establish कर रखी हैं उन सभी branches को हम 100 TB में से space provide करना चाहते हैं.
जब आप दूसरे लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं टू मेक अ कम्युनिकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जब आप स्पेस को शेयर करना चाहते हैं कि आप इसी लोकेशन से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं फॉर पुणे ब्रांच, फॉर दुबई ब्रांच और एनी अदर ब्रांच दैट यू इस्टेब्लिश, मीन्स जहाँ पे भी हमारी ऑफिस की ब्रांचेस रन कर रही हैं, किसी भी लोकेशन में अगर आपको स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यू नो दैट वी मस्ट नीड टू यूज़ अवर इंटरनेट, हम आईएसपी की हेल्प लेंगे एंड थ्रू द आईएसपी वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट इट with the help of internet service provider. We are able to share the space from one location to another location. अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं. गूगल ड्राइव वन ऑफ कॉमन एग्जाम्पल, आई क्लाउड another example, and OneDrive. ठीक है, these three different examples are related to the NAS storage. ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम कंसीडर करते हैं एज ए NAS storage because you know that NAS storage consider as a NAS storage consider as a object based storage. इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. And the meaning of object based storage, as per the name suggests, object based storage की जो meaning होती है वो you can say that storage device. Object based storage in the sense you are unable to make any partition. ऐसा स्टोरेज जिसमें आप कोई भी पार्टीशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा स्टोरेज जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं. आपको स्पेस मिलेगा टू अपलोड योर डेटा, दैट्स इट. आप उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो टू अपलोडिंग अ डेटा कंसीडर एज ए NAS स्टोरेज. दूसरा एग्जांपल, गूगल ड्राइव की बात करें तो यू नो दैट जब हम जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, राइट, जब हम जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आई डोंट थिंक कि वो जो 15 GB स्पेस मिलता है एवरी अकाउंट पे, हर एक अकाउंट पे आपको 15 GB फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है गूगल एज ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, एज ए कॉम्प्लीमेंट कि ठीक है आप अगर अपना कोई पर्सनल डेटा रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स यू वांटेड टू पुट योर फोटोज, स्मॉल रिकॉर्डिंग्स और एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसको आप कहीं पे भी 24/7 कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन. लेकिन आप कभी भी उस 15 GB के स्पेस को एज ए डिस्क नहीं अटैच कर पाते हैं. इज दैट करेक्ट? आप अपने 15 GB स्पेस को आई डोंट थिंक वी आर एबल टू कनेक्ट एज ए हार्ड ड्राइव. आप उस 15 GB के स्पेस को एज ए डिस्क नहीं एसोसिएट कर पाएंगे. इज दैट करेक्ट? Yes. ओनली बिकॉज ऑफ दिस इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. और ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, it will provide us option to connect, it will provide us option to associate with our machine, but उसको एज ए फोल्डर आप इस्तेमाल कर पाएंगे, एज ए मैप नेटवर्क ड्राइव इस्तेमाल कर पाएंगे, ना कि एज ए हार्ड ड्राइव. दैट्स वाई इट कंसिडर एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, जिसमें हम स्पेस को यूटिलाइज तो कर रहे हैं बट सिर्फ और सिर्फ अपना फोल्डर और फाइल्स रखने के लिए. वी आर नॉट ऑथराइज टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वी आर नॉट ऑथराइज टू मेक एनी काइंड ऑफ पार्टीशन. सो कंसिडर एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. फाइन. एज इट इज, लेट्स टॉक अबाउट SAN स्टोरेज. ये तो NAS की बात हो गई कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में या मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन में हम अपने स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने जो ब्रांचेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ को हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड दे आर एबल टू अपलोड देयर ऑन डेटा, दे आर अनेबल टू मेक एनी चेंजेस, दे आर अनेबल टू मेक एनी पार्टीशन. हाँ, वो स्पेस को यूज़ कर पाएंगे बट पार्टीशन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ठीक है.
तो SAN में भी पार्टीशन नहीं हो पाएगा, नो, वी आर एबल टू यूज एज ए फोल्डर, क्योंकि हम उसको केवल एज ए फोल्डर। फोल्डर इस्तेमाल कर पाते हैं, ना कि एज ए पार्टीशन। चलिए, अगला है अपने पास SAN स्टोरेज। As per the name suggests, the meaning of SAN storage is related to the storage area network. The meaning of storage area network, if you want to set up the storage for particular organization, यहाँ पे हमने एक ब्रांच अपना इस्टेब्लिश किया है, एंड यू नो दैट ब्रांचेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, मीन्स मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल client operating system, multiple database engineers are working with same organization. So what you need to do, you need to set up your SAN storage. यहाँ पे भी वही डिवाइस लगेगी जो आपने NAS के लिए इस्तेमाल किया था. The capacity of our device is contain up to 100 TB of space. यहाँ पे हमने 100 TB का स्पेस यूटिलाइज किया है. 100 TB स्पेस को आप मल्टीपल मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट दोनों में गैप क्या है? 100 TB को जब आप इस्टेब्लिश करेंगे ना, विच मस्ट बी अवेलेबल विद सेम लोकेशन, इसको हम सेम लोकेशन में इस्टेब्लिश करेंगे, और बाय यूजिंग द लोकल एरिया सेम लोकेशन एज इन सेम ब्रांच. ओके, जहाँ पे हमारा जहाँ पे हमें शेयर करना है, लाइक वेयर द फाइल्स. हाँ, ऑफिस जो लोकल ऑफिस है वो लोकल ऑफिस में हम SAN स्टोरेज इस्टेब्लिश करेंगे. But NAS के केस में we can distribute it like in different geographical region, worldwide, but yeah. not for SAN. SAN में फिर हम local area. Yes, we are able to set up it within the organization. Okay. अब ये जो 100 TB का स्पेस हमने एज ए SAN स्टोरेज इस्टेब्लिश किया है, वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट विद आवर नंबर ऑफ मशीन्स, चाहे वो हमारा ESXi होस्ट हो, चाहे वो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर हो, नॉर्मल ESXi होस्ट, डेटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर, कोई सा भी सर्वर जो हमने लोकल इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश किया है, विद हेल्प ऑफ SAN स्टोरेज वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. एंड SAN स्टोरेज को हम बोलते हैं ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज. ठीक है. ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जब भी आप SAN स्टोरेज से स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, whenever you share the space through the SAN, it means that जितना भी स्पेस आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, फॉर एग्जांपल you shared 500 GB स्पेस टू अ पर्टिकुलर सर्वर, तो ये 500 GB इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए असाइन कर दिया है हमने, एंड सर्वर विल डिसाइड कि इस 500 GB की स्पेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है. Okay. सर्वर विल डिसाइड कि हाउ वी कैन यूटिलाइज द 500 GB स्पेस. उसको 3 पार्टीशन बनाने हैं, 4 पार्टीशन बनाने हैं, जितने भी पार्टीशन ही वांटेड टू क्रिएट वो अपने अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश कर सकता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज की बेनिफिट्स की बात करें तो अंडर द ऑब्जेक्ट सॉरी SAN स्टोरेज, अंडर द SAN स्टोरेज वी आर एबल टू make a partition as per our requirement. ठीक है. जो भी आप पार्टीशन make partition और NAS के केस में नहीं, SAN के केस में हम पार्टीशन बना पाते हैं, NAS के केस में पार्टीशन नहीं हो पाता. नहीं. Okay sir. Is that clear? Yes. तो SAN के केस में कोई एग्जांपल क्या है कुछ? SAN के केस में लोकल स्टोरेज, नॉट लोकल स्टोरेज, लोकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जो हम स्पेस को इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके थ्रू जब हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने क्लाइंट इन्वायरमेंट के साथ, विच ऑल आर कंसीडर एज ए SAN स्टोरेज. यहाँ पे हम हार्ड डिस्क शेयर कर रहे हैं, वर्चुअल हार्ड डिस्क शेयर करेंगे. और द मीनिंग ऑफ वर्चुअल हार्ड डिस्क इन द सेंस जहाँ पे आप पार्टीशन भी कर पाएंगे, और जो अदर स्टोरेज आप रखना चाहते हैं, लाइक एज OS इंस्टॉल करना है या और कोई टास्क परफॉर्म करना है, यू कैन डू दैट. राइट. इज दैट ओके? ये दोनों केसेस में हमारा जो डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस, बोथ आर सेम
हाँ, डिवाइस हमारा सेम रहेगा। एक्चुअली जो गैप होता है ना, जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस सिर्फ यही रहता है आपके, जी यू कैन से दैट, सर आवाज नहीं। डिफरेंस ये होता है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से कर रहे हैं। ओके The procedure to distribute consider as a which decides the concept. ओके Okay, can we proceed for next? यस सर। I'm going to show you how we can utilize the NAS storage and how we can utilize the SAN storage, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है ना, इन्वायरमेंट के अंदर जो हमें यूटिलाइज करेंगे वो हमारा सैन स्टोरेज ही होगा। तो सैन स्टोरेज को यूज करने के लिए शुड इंस्टॉल एटलीस्ट सर्वर जो दो प्रोटोकॉल कंटेन करता है। वन प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू आईएसकेजी एंड जो दूसरा प्रोटोकॉल है वो हमारा है, यू कैन से दैट कंसीडर एज ए एनएफ NFS, ISKG एंड NFS। ISKG एंड NFS ये दो प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करते हैं टू कॉन्फ़िगर द environment. Is that okay? We have already established our ESXi host and we established our web server domain controller. It's not mandatory to use domain controller, means आपके पास server machine होना चाहिए बस। It's not mandatory कि आप domain ही रहेगा तभी काम करेगा। So it is applicable for all. Applicable for all in the sense I'm talking about कि अगर environment के अंदर मीन्स कोई सा भी एक सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है तो उस सर्वर के थ्रू आप सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं स्टोरेज एरिया का। इज दैट ओके? यस सर। Okay, let's talk about it. Give me 1 minute. Let me proceed and set up our environment. यहाँ पे हमने एक सर्वर 2019 को टर्न ऑन किया है। लेट मी टर्न ऑन इट। लेट मी एक्सेस अवर सर्वर मशीन। ठीक है, दिस इज आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई वांटेड टू शेयर सम स्पेस फ्रॉम दिस मशीन टू ESXi, जो अपना ESXi होस्ट है ना, इसको हम Right. कुछ शेयर स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। जस्ट वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस थ्रू आवर सैन स्टोरेज। जो सैन स्टोरेज है उससे हम कुछ स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं।
So for this particular task, you must need to install one service in our server machine. Add role and features पे जाएंगे, next पे क्लिक करेंगे, next, and you must need to select one option, file storage and services. इसको expand करिए और आपको यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल इंस्टॉल करने हैं. ISKG टारगेट सर्वर, NFS आपको चेक मार्क करना है यहाँ पे, और ISKG टारगेट सर्वर, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे वेरीफाई करने हैं. और सर इसके जो नीचे वाला जो ISKG टारगेट एंड सर्वर स्टोरेज प्रोवाइडर, नहीं, वो आपके हाइपरवाइजर के लिए है. इफ यू वांट टू सेट अप आवर एनवायरनमेंट थ्रू हाइपरवाइजर, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट. ठीक है. Okay, just give me 1 minute. I'm just going to proceed and install. पहला स्टेप इंस्टॉलेशन रहेगा. दूसरे स्टेप में हम इसको जी. कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे. सर लर्निंग पर्पस के केस में हम लोग इसको लाइक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइक हम क्रिएट करते हैं एज अ शेयर स्टोरेज. तो रियल टाइम में इसको किस तरह से हम लोग क्या कैसे होता है? देखो, प्रोसीजर तो कोई जो है difference है? प्रोसीजर जो है एक्सेस करने का सेम ही रहेगा. ठीक है, ओके. प्रोसीजर एक्सेस करने का सेम ही रहेगा. बट अगर हम बात करें रियल इन्वायरमेंट के केस में, तो बहुत सारे सैंड डिवाइसेस जी. आती हैं, राइट. डेल के पास अपना जी खुद जी. का सैंड स्टोरेज डिवाइस है. एंड अगर हम बात करें एसर का भी डिवाइस है. मीन्स सबका अपना पर्सनल स्टोरेज डिवाइस रहता है. एंड हम्म. एज ए वीएम एडमिन, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी शुड नो अबाउट कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है. ओके. ठीक है, पहले हम सो उनमें भी लाइक जब सो उसमें भी हमें लाइक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हमें लाइक शेयर मतलब स्टोरेज हमें शेयर करना होता है. सेम प्रोसेस. करेक्ट. वी सक्सेसफुली इंस्टॉल द शेयर स्टोरेज. यहाँ पे हमने ISKG और NFS दोनों को इंस्टॉल किया है. राइट. Fed, just give me 1 minute. Yeah, Fed, can you hear me? Hello. Yes, sir. Okay, ठीक है. Yes, sir, I can hear. ISKG एंड NFS प्रोटोकॉल. देखो, अभी अपने पास कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यू नो दैट. डेल के सर्वर की अगर हम बात करें, स्टोरेज परचेज करने की बात करें, जी. जो उसके स्टार्टिंग रेंज है ना, स्टार्टेड फ्रॉम $1,500, $2,000, $3,000, लाइक दैट. मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख से स्टार्टिंग है उसकी. और 1.25 लाख 1.5 लाख जी. में आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डली बहुत ज़्यादा मिलेगा ना, तो 10 TB का स्पेस मिलेगा. राइट. ओके, बिकॉज एक्चुअली उनकी जो हार्डवेयर रहते हैं ना, उनकी जो डिवाइसेस रहती हैं, वो हॉट प्लग रहती हैं, ऑटोमेटिक हॉट प्लग रहती हैं. द मीनिंग ऑफ हॉट प्लग, आप चलते हुए डिवाइस में हार्ड डिस्क निकाल सकते हो, आप नई हार्ड डिस्क लगा सकते हो, अच्छा. आपके हार्ड डिस्क पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स रहते हैं, जैसे उसके अंदर UPS की बात करें, एंड इंडिकेटर्स की बात करें, अलर्ट की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो उनका सबका कॉम्बिनेशन मिला करके बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है वो. जी.
इन आर केस वी आर इन ट्रेनिंग, तो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, तो हम अपने सर्वर को एज ए सैन मानते हैं, अपने सर्वर ओएस को एज ए सैन मानते हैं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, जो प्रोटोकॉल हम अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं लाइक जी NFS एंड ISKG, सेम प्रोटोकॉल आपका डेल देता है, सेम प्रोटोकॉल आपके एसर या जितने भी HP के स्टोरेज आप परचेज करेंगे, तो इन्हीं दो प्रोटोकॉल्स की हेल्प से वो इन्वायरमेंट के अंदर स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं. ओके इज दैट ओके? तो इस केस में क्या होगा, यस सर इस केस में क्या होगा कि ठीक है, अपने पास वो डैशबोर्ड नहीं है, बट जो बाकी के स्टेप्स हैं वो आपके क्लियर है, मतलब इसी स्टेप का हम इस्तेमाल करेंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू, वी कंसीडर आवर सर्वर एज ए सैन स्टोरेज, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इंस्टॉल कर लिया. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, यू मस्ट नीड टू चेक योर IP एड्रेस. तो अभी हम यहाँ पे IP कॉन्फ़िग की बात कर लेते हैं. एंड द IP एड्रेस ऑफ सर्वर मशीन इज़ 1.2. हमारे पास जो सर्वर की IP एड्रेस हमें अभी मिल रही है ना, ये हमें 1.2 असाइन हो रही है. और इस 1.2 का अगर हम बात करें तो उस केस में आप बोल सकते हो कि दिस इज द IP एड्रेस ऑफ आवर सैन स्टोरेज, जिसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को एक्सेस करने का काम करेंगे, मीन्स ESXi होस्ट को स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम करेंगे. ओके तो we successfully installed. और second important point, you must need to confirm the ESXi host IP address, क्योंकि हम ESXi host को स्पेस देने वाले हैं थ्रू द सर्वर. हाउ वी कैन डू दैट? फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे जाएंगे आप, पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, नॉट बिफोर. और यहाँ पे आप देखिए ISKG का ऑप्शन दिख रहा है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ISKG. टास्क पे जाएंगे, न्यू ISKG डिस्क पे क्लिक करेंगे. वी हैव अ स्पेस ऑफ 46 गिग फ्री स्पेस अवेलेबल है. नेक्स्ट करेंगे, कोई सा भी नाम प्रोवाइड कर दीजिए, इट्स नॉट मैंडेटरी. टेस्ट हाउ मच स्पेस यू वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट, लाइक हम अपने केस में 25 GB का स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है. आई वांटेड टू शेयर 25 गिग ऑफ स्पेस टू आवर ESXi होस्ट. ओके जितना भी स्पेस आप प्रोवाइड करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है हमें. नेक्स्ट पे क्लिक करो, न्यू ISKG टारगेट पे क्लिक करो, शेयर पे क्लिक करो, नेक्स्ट ऐड पे क्लिक करो एंड एंटर द वैल्यू. अब यहाँ पे 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. One is IQN, second is DNS name, third one is IP address, and fourth one is related to the MAC address. चौथा अपने पास MAC address. मतलब स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनमें से कोई भी ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो IQN आप यूज़ कर लीजिए, DNS नेम है, अगर आपके पास इन्वायरमेंट में DNS है तो DNS का इस्तेमाल कर सकते हैं, MAC एड्रेस है तो MAC एड्रेस के थ्रू भी शेयरिंग की जा सकती है. सबसे बेस्ट तरीका है, IP एड्रेस के थ्रू भेज रहे हैं यहाँ पे अपने स्पेस को 192.168.1.22 और वी जस्ट नीड टू क्लिक. यहाँ पे आपको उस मशीन का IP एड्रेस देना है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. मीन्स यहाँ पे आप अपने डेस्टिनेशन को डेस्टिनेशन की IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे. डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पे ESXi है, जिस ESXi होस्ट की IP एड्रेस 22 हमने डिसाइड कर रखी है. ओके पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आप पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर चैट. नेक्स्ट और क्रिएट. वी सक्सेसफुली क्रिएटेड. और यहाँ पे आप देखो ये नॉट कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है. 25 GB स्पेस तो आपने शेयर कर दिया, बट वो क्या है अपने पास, नॉट कनेक्टेड है, वी हैवंट कनेक्टेड इट. So what you need to do, we just need to back our ESXi, क्योंकि यहाँ से तो बंदे ने असाइन कर दिया कि ठीक है 25 GB हमने इस ESXi को प्रोवाइड कर दिया, 22 ऑनर है इस 25 GB स्पेस का, और यू मस्ट नीड टू एक्सेस. नॉट कनेक्टेड, कंडीशन इसकी नॉट कनेक्टेड. बैक टू द ESXi होस्ट. यहाँ पे न्यू सर्वर डेटा स्टोरेज है. अनफॉर्चुनेटली न्यू स्टोरेज में 0 डेटा, अभी यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दिखाई पड़ रहा है.
बिकॉज यू नीड टू इन्फॉर्म टू योर ESXi कि आपका जो सैन स्टोरेज है उसने आपके लिए 25 GB का स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो ESXi को इन्फॉर्म करिए। आप इन्फॉर्म कहाँ से करेंगे? यहाँ पे एडेप्टर्स पे जाएंगे। अंडर द एडेप्टर्स आप देखिए यहाँ पे ISKZ सॉफ्टवेयर ISKZ एडेप्टर दिखाई पड़ रहा है। right. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर ISKZ और बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है। आप इसको टर्न ऑन करेंगे, मीन्स Enable. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इनेबल इट। इनेबल करने के बाद दिस इज द नेम एंड एलियास IQN। आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि अब अगर आप इस ESXi को IQN के थ्रू मैप करना चाहते हैं तो आई थिंक ये IQN हमें कॉपी करके शेयर स्टोरेज टीम को बोलना पड़ेगा। Yeah. ठीक है, IP एड्रेस तो आप नॉर्मली बता देंगे, ठीक है, IP एड्रेस नॉर्मली बता देंगे, लेकिन IQN की जो कोड है वो आपको सेंड करने पड़ेंगे। और ये काफ़ी सिक्योर माना जाता है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्शन से बचाता है। IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बट IQN कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड रहता है। यस, इसका नाम है IQN आइडेंटिटी यूनिक नंबर। Identity unique number which is related to distribute or access the share storage from SAN to local machine। ठीक है, Yes, ma'am. we are able to find dynamic and static IP address। यहाँ पे आप dynamic पे जाएंगे और IP address of our server, जिसने भी आपको जिस SAN स्टोरेज ने आपको स्पेस प्रोवाइड कर रखा है 192.168.1.2, ये हमारे पास सर्वर की IP एड्रेस होगी 192.168.1.2 एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया, एवरीथिंग इज ओके। आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके आइडेंटिफाई कर लो। अभी ये ऑप्शन क्या आ रहा है? कनेक्टेड, मीन्स शेयर स्टोरेज जो आपने अपने सर्वर से यूज किया था वो सक्सेसफुली आपने असाइन कर दिया है। किसके लिए? ESXi होस्ट के लिए। We successfully assigned the space to our ESXi host। Yes. चलिए बैक आ जाते हैं स्टोरेज के पार्ट पे। एंड अंडर द स्टोरेज स्टिल वी आर अनेबल टू फाइंड द 25 GB स्पेस। अभी भी जो हमने 25 GB स्पेस प्रोवाइड किया था ना, वो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, राइट? Right, sir. You have to attach it. एग्जैक्टली, जस्ट नीड टू क्लिक न्यू डेटा स्टोर और यहाँ पे VMFS क्या होता है? वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम। VMware इन्वायरमेंट के अंदर जब भी आप कोई स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जब भी कोई स्पेस आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, विच इज कंसीडर एज ए VMSS फॉर्मेट। वो आपका फाइल फॉर्मेट जो है VMSS के तरीके से कंसीडर किया जाता है। इज दैट ओके? Yes. And so what about these three? ये तो इसी के ऐड एंड एक्सटेंड टू एग्जिस्टिंग VMFS। अगर आपने पहले से कोई स्टोरेज ऐड कर रखा है, उसी को आप चेंज करना चाहते हैं, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। 25 GB पहले दिया था एंड क्लाइंट कह रहा है कि नहीं आप इसी 25 GB को 50 कर दो, तो सेकंड ऑप्शन यूज करेंगे। तो हमें वहां से करना होगा शेयर स्टोरेज जो जहां से हमने क्रिएट किया था वहीं से। हाँ, वहां से बढ़ेगा लेकिन यहाँ से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, पहले आप डेस्टिनेशन सोर्स से बढ़ाएंगे फिर डेस्टिनेशन पे चेंज करेंगे। ओके, then we have expand an existing VMFS data store। extend करना मीन्स उसी स्पेस को expand करना या extend करना, ये आपका existing है। एक है add और एक है existing, राइट? जी जी तो दोनों में क्या नहीं, ये ऑप्शन क्या है? ऐड इन द सेंस कि 25 GB आपने दे दिया और फिर आपने रिक्वेस्ट की कि आप इसमें और ऐड करो स्टोरेज। जब दूसरा लॉजिकल यूनिट नंबर ऐड करेंगे तो ये आएगा। उसी स्टोरेज को आप इंक्रीज कराएंगे तो एक्सपैंड आएगा। ओके, मतलब बैकएंड से आप बोलोगे कि उसी 25 GB को आप क्या कर दो, 50 GB कर दो, तो ये सेकंड ऑप्शन आएगा। एंड ऐड एक्सटेंड मतलब कि 25 GB है, 25 GB का LAN है और 25 GB का और LAN अटैच करना है। ओके, ठीक है।
चलिए, लास्ट है अपने पास NFS। तो NFS एक प्रोटोकॉल है जिस NFS के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स ये दूसरा प्रोटोकॉल है, आज के जिस इसका कोई मतलब नहीं है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्रिएट न्यू पे जाते हैं क्योंकि अभी हमने अटैच भी नहीं किया। नेक्स्ट, ये आ गया 25 GB जो आपने प्रोवाइड किया था। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए शेयर स्टोरेज। नेक्स्ट, ये स्पेस है जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि हाउ मच स्पेस यू वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट। Okay. Next one, right space. ठीक है, यहाँ पे अपने पास फुल स्पेस है, और अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कस्टम एंड इट विल गिव यू द ऑप्शन। 25 में से आप कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यू वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट इंटायर स्पेस या आप कुछ बचा के रखना चाहते हैं। 50% यू वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट, Okay. 50% हम बचा के रखना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट। आप इसको कभी भी एक्सपैंड Okay. कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। So I wanted to share entire space, यहाँ पे हम पूरा स्पेस। हम्म, नेक्स्ट एंड फिनिश। वी सक्सेसफुली एडेड इंटायर स्पेस। यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा स्पेस जो है वो हमने असाइन कर दिया। So this is the all procedure that can help us to manage our, what we can say, that storage services. Is that clear? Yes. Any question? Clear है, ठीक है। Any doubt? Any question? ठीक है यहाँ तक? Fetch, can you hear me? हेलो मैं, यस या, हाँ ठीक है, ये आपका NFS क्लियर हो गया? जी जी। Okay, let's talk about other point. NFS के थ्रू कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? Let's try to understand about the concept of NFS. Back to server controller, server machine. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस पर्टिकुलर टास्क के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको जिस एटलीस्ट यू नीड टू इंस्टॉल वन सर्वर, राइट? और सर्वर के Yes. केस में you must need to create one partition जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अगेन आई एम गोइंग टू ओपन डिस्क mgmt.msc। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस श्रिंक कर लेते हैं ताकि हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, नॉट मच, 10 to 15 GB।
10 से 15 GB का स्पेस. I don't want to share the space with C drive. ठीक है, एक अलग पार्टीशन हमने क्रिएट सेम किया. सर्वर मैनेजमेंट, सॉरी, सेम स्टोरेज को आपने सेम स्टोरेज को आपने एनएफएस के लिए भी यूज कर. हाँ, सर्वर के अंदर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है. एनएफएस का प्रोटोकॉल भी सपोर्ट Okay. करता है और नॉर्मल आईएसकेजी का भी प्रोटोकॉल सपोर्ट जी, करता है. तो मीन्स ठीक है. रियल इन्वायरमेंट पे ज़्यादातर यही दोनों प्रोटोकॉल के जरिए हम अपने इसमें इन्वायरमेंट जी. में ESXi होस्ट को स्पेस प्रोवाइड करते हैं. तो आई थिंक वी गुड विद दैट, राइट? वंस यू शेयर द स्पेस, वंस यू क्रिएट पार्टीशन, आप अपने उस ड्राइव पे आ जाएंगे जो ड्राइव आपने क्रिएट की अभी, लाइक दिस ई ड्राइव. और यहाँ पे हम तैयार करते हैं NFS. राइट क्लिक ऑन NFS, गो टू द प्रॉपर्टीज और शेयर विद NFS शेयरिंग. अब देखिए कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है NFS शेयरिंग. सो NFS शेयरिंग विल अपेयर ओनली इन केस ऑफ जब आप NFS प्रोटोकॉल इंस्टॉल करेंगे ना, तभी ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आएगा. ओके. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस. ठीक है, NFS शेयरिंग पे क्लिक करो, आप मैनेज NFS शेयरिंग पे जाओ, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन, और यहाँ पे देखो रीड ओनली दिखाई पड़ रहा है. यू मस्ट नीड टू चेंज इट एंड रीड एंड राइट इसको कर देना है. साथ ही साथ अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन, यानी आप अपना सर्वर का IP एड्रेस मेंशन कर देंगे. Yes. इसको भी आप रीड राइट को अलाउ कर देंगे. डन. यस, आई वांटेड टू प्रोसीड फॉर ग्लोबल परमिशन. यहाँ पे हमने किया इसको असाइन. सर इसमें आपने आईपी एड्रेस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सर्वर मैनेजर का डाला है या ESXi का? नहीं, सर्वर का देना है क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करता है. ओके. मतलब एनीवन कैन एक्सेस. अगर आपने अपनी तरफ से शेयर कर दिया ना, तो कोई भी बंदा जो इससे जी. कनेक्टेड है, जो इससे कम्युनिकेट कर रहा है, दे आर एबल टू एक्सेस द सेम स्टोरेज. ओके. ठीक है. ओके. ये ऐसा डेजिग्नेटेड सोर्स पे लाइक डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा, लाइक इट्स लाइक कोई भी इसको यूज लाइक एक्सेस कर सकता है. सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? लाइक जैसे आपने बोला ना कि मतलब ब्रॉडकास्ट आई मीन टू से लाइक ये मतलब फिक्स टारगेट पे नहीं जाएगा, ओपन टू ऑल. Open to all, anyone can access. Applicable for all, and anyone can access the same storage. ओके. चलिए, यहाँ पे हमने इसको शेयर कर दिया. बैक टू द ESXi होस्ट और न्यू डेटा स्टोरेज पे जाओ. आप NFS माउंट पे क्लिक करो, क्लिक नेक्स्ट, टाइप द नेम ऑफ योर स्टोरेज NFS सर्वर IP एड्रेस 192.168.1.2 और यहाँ पे आपको पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो पाथ वाज, यहाँ से मिल जाएगा आपको पाथ जी. E:/NFS. ठीक है. Click next, finish. Within second we are able to attach 15 gig of space. NFS स्पेस देखिए आपके पास. NFS स्पेस में कितना स्पेस दिखाई पड़ रहा है? 14.65. मतलब वही 15 GB के आसपास का स्पेस आपको मिल रहा है. जी. एंड ये आपका SSD जो नॉन SSD जो हमने शेयर किया था आईएसकेजी के जरिए, वो 25 पॉइंट समथिंग GB के आसपास, ये 15 GB के आसपास. तो वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस थ्रू द NFS एंड आईएसकेजी. दोनों प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, राइट? राइट. नाउ अनदर पॉइंट, यूजुअली NFS हम लोग कब यूज करते हैं, लाइक कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है? द गैप बिटवीन NFS एंड आईएसकेजी. मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ यहाँ पे NFS का. मान लीजिए दिस वन इज आवर NFS, राइट? राइट. ओके, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन टू आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल कि कब इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट किया, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट एनी नेम लाइक एज Windows 8, guest OS Windows
64 बिट नेक्स्ट, हमें NFS सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्पेस बहुत ज़्यादा है, आई एम गोइंग टू मेक इट 10 गिग और थिन प्रोविजन कर देते हैं इसको, केवल हमें टेस्टिंग करना है, थिन प्रोविजन ऑलरेडी है। चलिए, अभी आप इंस्टेंस कहाँ पे क्रिएट कर रहे हो? विंडोज 8 कहाँ पे रन कर रहा है? विंडोज 8 NFS में क्रिएट किया इसको हमने, राइट? जी अब अगर आप इस स्टोरेज में जाएंगे, NFS में जाएंगे, ब्राउज डेटा स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। NFS पे जाने के बाद ब्राउज डेटा स्टोर पे जाएंगे, सॉरी मैंने एबल टू ओपन इट। ब्राउज डेटा स्टोर में अब देखिए विंडोज 8 है और इसके अंदर ये फाइल्स अवेलेबल है, करेक्ट? यू आर एबल टू एक्सेस जी इट, ओके। अब यहाँ पे आप ओपन करेंगे NFS, वी आर एबल टू एक्सेस द सेम फाइल, ओके गॉट इट? द मीनिंग ऑफ NFS मीन्स अगर आप अपनी फाइलों को दो लोकेशन से हैंडल करना चाहते हैं, एक तो ESXi पे, आप चाहते हो कि नहीं स्टोरेज टीम भी जिम्मेदार रहे हमारी फाइल्स के लिए, कि इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बंदा यहाँ से फाइलों को कॉपी करके रख ले, हमारे इश्यूज आते हैं मशीन में तो वहाँ से भी एडिटिंग किया जा सके, तो आप NFS पे जाएंगे। बट IceKG में ऐसा नहीं होता, IceKG की फाइलें आप चेक नहीं कर पाओगे। ये IceKG डिस्क है 25 GB की C ड्राइव पे, यहाँ पर टेस्ट नाम का IceKG बनाया था जी। यू आर अनेबल टू ओपन इट, यू आर अनेबल टू मेक एनी चेंजेस। मतलब अगर आप सिक्योरिटी के साथ चीज़ों को ले जाना चाहते हैं तो आप IceKG पे जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें दो जगह से मेंटेन करना है इन्वायरमेंट को, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट NFS। इज दैट ओके? ओके, राइट सर। तो ये अपने पास स्टोरेज का कॉन्सेप्ट हुआ। स्टोरेज के केस में अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा, अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट इन द सेंस लाइक what are the points that we need to cover for the configuration, इनमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो अभी हमने VM का पार्ट कंप्लीट किया, ESXi का पार्ट कंप्लीट किया, स्टोरेज का पार्ट कंप्लीट किया, एंड नाउ इट्स योर टर्न, यू मस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट द सर्विसेज, ठीक है। तो कल हम स्टोरेज को कंप्लीट कर लेंगे, और सैटरडे संडे आप अपना प्रैक्टिकल के लिए रखो, और लेट मी नो बिफोर 1 आवर 2 आवर, तो मैं अपना सिस्टम आपके साथ शेयर कर दूंगा दैट यू कैन परफॉर्म द एंटायर प्रैक्टिकल, ठीक है? ठीक सर, ठीक। तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम पे और डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टोरेज। कल हम स्टोरेज को रैप अप कर देंगे, एंड डे आफ्टर टुमारो विल डिस्कस अबाउट, मीन्स आप प्रैक्टिकल करोगे, बाकी हम लोग आगे वाली पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है? जी जी, ठीक। चलो, थैंक यू सो